Hello student, I am Mandardhar Naik, lecturer in commerce. Welcome to my video session. Today our topic is process costing. आप लोग को मालूम है cost accounting means to find out the cost of production to produce a particular article. Whatever cost is involved, that will be added and cost of production is find out. Out of the cost of production, we are going to calculate cost per unit also. Total cost divided by number of output is equal to cost per unit. ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. In case of specific costing, your job costing, batch costing, process costing, unit and output costing. I mean to say that different type of cost accounting is there. In case of cost sheet, we are finding out the cost per unit or total cost per unit. एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है हम लोग को पता चलता है कॉस्ट शीट से. उसमें अगर हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाता है. लेकिन जॉब कॉस्टिंग में फॉर ईच पार्टिकुलर जॉब कॉस्ट इज असर्टेन. ईच पार्टिकुलर जॉब, एक जॉब के लिए कितना खर्चा हुआ वो जॉब का ही निकलेगा. उसमें से अगर हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाता है. इन केस ऑफ बैच कॉस्टिंग वी आर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट पर जॉब, सॉरी कॉस्ट पर बैच. मेडिसिन में आप देखिए बैच नंबर लिखा रहता है, दैट इज कम्स अंडर योर बैच कॉस्टिंग. बट इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, टू गेट द आउटपुट प्रोडक्ट आर पासेस थ्रू different stages, different process, because input of process 1 and output of process 1, that means once the input is given to get the output, once the input is given to get the output, product are passes through different stages. Each stage is called a process. हम अगर इनपुट देते हैं आउटपुट पाने के लिए तो ये इनपुट डिफरेंट स्टेजेस में चला जाता है. Each stage is called a process. मान लीजिए A, B, C, there are 3 process. प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस 3C. 3 प्रोसेस है. अगर हम प्रोसेस ए में इनपुट देते हैं, इनपुट मतलब क्या? इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज योर रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. These are the 3 elements of cost, that is material, labor and cost. Once input is given, means material, labor and overhead are input, that is given in process A. Then in process A you will get the output, that is called output of process A. Remember this point. Once raw material, labor and overhead is given to the process A, the total is called input. Once input is given to process A, then you will get output of process A. The output of process A again is the input of process B. That means cost of process A plus cost of process B will be added.
whatever cost you will get, that total cost is called cost of process B or output cost of process B. Then again, the output cost of process B is the input cost of process C. Again, cost of process B, cost of process B plus cost of process C will be added to get the output cost of process C. Clear my point? Once the product we are going to produce, input is given to process A. Input means material, labor and overhead. Then you will get output. The total cost of output is total cost of material, total cost of labor plus total cost of overhead. If you add this process A and whatever output is there, that is the cost of output of process A. Again, output of process A is the input for the process B. Again, in the process B, some material, some labor and some overhead are added. I mean to say, cost of process A plus cost of process B will be added. That will be the cost of process B. Total cost of process B. क्लियर माय पॉइंट? दैट अगर इसको बात करते हैं, जितना भी हम इनपुट प्रोसेस ए में देते हैं उतने ही कॉस्ट हम ऐड करते हैं आउटपुट में. जितना भी आउटपुट निकलेगा प्रोसेस ए से, जितना आउटपुट निकलेगा उसका कॉस्ट जो है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को जोड़ देना है. फिर प्रोसेस ए का जो आउटपुट कॉस्ट है वो इनपुट कॉस्ट है प्रोसेस बी का. फिर प्रोसेस बी में कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ लेबर लगेगा, कुछ ओवरहेड लगेगा और टोटल को जोड़ देना है. मतलब प्रोसेस ए का कॉस्ट प्लस प्रोसेस बी का कॉस्ट जोड़ देने से हमको टोटल कॉस्ट आएगा प्रोसेस बी का, जो कि आउटपुट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बी है. और वही आउटपुट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बी इज द इनपुट कॉस्ट फॉर द प्रोसेस सी. और सी में फिर कुछ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा. तो टोटल जब हम निकालेंगे प्रोसेस सी में, ए का कॉस्ट, बी का कॉस्ट, सी का कॉस्ट निकलते हुए आएगा, जो प्रोसेस सी का कॉस्ट आएगा that is called cost of the output. That means you will get the finished product of process C. Finished product of process C. Process C. तो total cost निकल जाएगा. So in case of process costing, to get the output, product are passes through different stages. Each stage of process is called process A, B or C. You may define process 1, process 2, process C also. Then only you will get finished product. इसको अगर हम एग्जाम्पल लेके समझने के लिए कोशिश करेंगे, मान लीजिए नेकेड बॉडी ऑफ चेचिस, जो हम ट्रक बनाते हैं उसका नेकेड आता है, नेकेड चेचिस आता है. उसमें कुछ भी नहीं रहता है, अपना हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, शेप देते हैं, साइज देते हैं. तो सबसे पहले कौन सा काम होता है? जब नेकेड बॉडी आएगा सबसे पहले आता है कारपेंट्री का काम. दैट मीन्स लकड़ी का काम, पूरा काम करना पड़ता है. वो एक सेक्शन है कारपेंट्री सेक्शन. दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस. कारपेंट्री सेक्शन खत्म होने के बाद आप लोग का आता है कलर सेक्शन. कलर होगा. कलर जो है ये भी एक प्रोसेस है. और टोटल प्रोसेस को हम प्रोसेस मानेंगे तो दो प्रोसेस हो गया,
कारपेंट्री हो गया, कलर सेक्शन आ गया, फिर आपका सीट बनता है, वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये हर स्टेज जितना भी काम होता है, हर स्टेज को हम एक एक प्रोसेस मानते हैं। दैट मीन्स once the input is given to get the output, product are passes through four different stages. First stage is carpentry, second is your color section, third is your wiring, seat, cover, जो भी है एक एक सेक्शन है। मतलब गाड़ी आया कारपेंट्री सेक्शन में, कारपेंटर अपना काम कर दिया, लकड़ी उकड़ी जितना लगाना है लगा दिया, तो वो एक सेक्शन है, उसमें भी मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, उसका कॉस्ट पूरा जोड़ेगा, जोड़ने के बाद वही चीज को आगे बढ़ा देगा कलर सेक्शन में। कलर सेक्शन में फिर कलर होगा, उसका भी मटेरियल अलग है, लेबर अलग है, ओवरहेड अलग है, फिर वो जाएगा इलेक्ट्रिकल सेक्शन, सीट बनाने का काम, ये एक प्रोसेस है। लास्टली यू विल गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस कॉस्टिंग इज जनरली यूज इन केस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, इन सम ऑफ द construction work also process is there. So in different industry process costing are used, but we are mainly related with how the process cost account is maintained. So in this case this is process 1, process 2 and process 3. मान लीजिए कारपेंट्री सेक्शन है, ये कलर सेक्शन है और ये इलेक्ट्रिकल जितना भी लगता है एसेसरी सेक्शन है। तो प्रोडक्ट यहाँ से हम नेकेट वॉल्यूम डाले, यहाँ पे खर्चा हुआ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर जितना भी खर्चा हुआ वही खर्चा में फिर दोबारा जुड़ जाएगा कलर का खर्चा, कलर का खर्चा के बाद इलेक्ट्रिक का खर्चा। दैट मीन्स प्रोडक्ट आर पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस टू गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो once you will get the finished product means you will get cost of your production, cost of production of a particular article. Once cost is added, then you will get cost of production, and in this cost of production if you add the margin of profit, if you add the margin of profit, then you will get the selling price, then you will get the selling price. So in case of process costing, once input is given, product are passes through different stages, each stage is called a process to get the output. Finally in process C you will get the finished product. That means that cost is cost of production or cost of the finished product you will get. If you add certain margin of profit, then you will get the selling price. This is the things in case of process costing. You will find in case of process costing, loss is also there. As you know, our losses is of two types, normal and abnormal. Normal loss and abnormal loss. Loss is of two types, normal loss और एक है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस दैट इज अनअवॉइडेबल टाइप ऑफ लॉस, दिस कैनॉट बी अवॉइडेड। नॉर्मल लॉस you cannot be avoided. Normal loss normally happens like leakage, spoilage, weight loss, evaporation. All these things are called your normal loss. You cannot avoid it. हम जितना भी कोशिश करें नॉर्मल लॉस को हम रोक नहीं पाएंगे, वो होगा ही होगा। So normal loss, there is no specific accounting treatment for normal loss, but there is no realizable value फॉर नॉर्मल लॉस ऑल्सो। नॉर्मल लॉस का कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस its realizable value is nil. You cannot realize anything out of your normal loss. ना नहीं,
But in case of abnormal loss, that is avoidable type of loss. एबनॉर्मल लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं, बट ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ द डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई, दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ऑकर्स. Clear my point? Normal loss, that is unavoidable type of loss, we cannot avoid it. Such type of loss must be occur. But in case of abnormal loss, that is avoidable type of loss, but due to negligence of the dishonest employee, this type of loss is occurs. And this type of loss, your abnormal loss, purely loss for the business. Loss for the business, but normal loss, that is normally happen, you cannot avoid it, no, but in case of abnormal loss, it is a avoidable type of loss, and this is totally a business loss. तो normal loss में क्या क्या आता है? Weight lost, evaporation, scrap, नहीं, and in this case, in case of normal loss, that is purely unavoidable. Its realizable value is always zero. But sometime if it is a scrap, then something in return you will get. That is called realizable value. In case of abnormal loss also, some realizable value may be there or may not be there, but you will calculate how much is actual abnormal loss. कैसे कैलकुलेशन होता हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे. क्लियर? तो इसको आप जब अकाउंट में बनाते हैं तो आप कैसे बनाओ? पहले हम बात करेंगे नॉर्मली हाउ योर प्रोसेस कॉस्टिंग, दैट इज नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट इज प्रिपेयर. सबसे पहले हम इसका बात करेंगे. मान लीजिए 3 प्रोसेस है एग्जाम्पल के हिसाब से. सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए. प्रोसेस ए. In your left hand side, you will record all the expenses. All the expenses. Expenses means, as you know, there are 3 elements of cost: material, labor, and overhead. These are the 3 elements of cost. This will be recorded in left hand side. Nani? Here you will record particulars. Either you will record unit. Here you will record amount. थोड़ा किताब में अलग दिया है, मैं आप बेटर समझ पाएंगे, इसीलिए यूनिट, अमाउंट, या पार्टिकुलर्स. ये लिखेंगे. तो आप लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को लिखेंगे. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मीन्स टू मेटेरियल. टू मेटेरियल मान लीजिए 1000 टन्स, तो ये टन्स बोल के लिखना पड़ेगा. यूनिट कुछ भी हो सकता है, टन्स में भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. इसका दाम मान लीजिए 10,000. क्लियर? मेटेरियल इंट्रोड्यूस किए प्रोसेस ए में 1000 टन, 10,000 रुपया. फिर टू लेबर. लेबर में तो कोई टन फॉन्स यूनिट होता नहीं है, इसमें डायरेक्ट मान लीजिए 2000 है, यहाँ 2000 लिखेंगे. टू ओवरहेड, इसका भी कुछ नहीं है, मान लीजिए 3000. देन द टोटल कॉस्ट इज 1000 टन्स, कॉस्ट 15,000 रुपीज. कितना? 15,000. नाउ द टोटल कॉस्ट, मैं पहले आपको बोला हूं
प्रोसेस ए का जितना भी टोटल कॉस्ट हो गया दैट विल बी ट्रांसफर टू द प्रोसेस बी। तो हम यहां लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर किए, 1000 टन। कितना टोटल कॉस्ट आया, 15,000। इसको आप टोटल को ट्रांसफर कर देना है प्रोसेस बी में, 1000 टन। क्लियर माय स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ए किए। प्रोसेस ए में जितना भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में लिखे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। You will record all the element of cost in the left hand side, unit and amount. This is your particulars. Whatever total cost is there, that will be transferred to the process B account. अभी कौन सा प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस बी। प्रोसेस ए का जितना भी टोटल कॉस्ट होगा, जितना यूनिट होगा, दिस विल बी ट्रांसफर टू द प्रोसेस बी। मैं पहले भी बोला था कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए विल बी ट्रांसफर टू द प्रोसेस बी। बी में ट्रांसफर करेंगे, कैसे करेंगे, वही इस चीज को मैं लिख देता हूं, प्रोसेस बी। अब देखो आप प्रोसेस बी कैसे बनाता हूं। यहां प्रोसेस बी लिखिए, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए ये प्रोसेस बी है। अब बी बनेगा। जब प्रोसेस बी करते हैं तो मैं आप लोगों को बोला था प्रोसेस ए का ट्रांसफर होके आया है, आप वहां लिखे हो ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। आप यहां लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, जितना प्रोसेस ए से ट्रांसफर होके आया है सबसे पहले उसको लिखना है। कितना आया था, 1000 टन। कितना हजार रुपया, 15,000। इसको यहां लिखना है। क्यों वहां लिखे हो आप ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, यहां लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। इसका मतलब प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से 1000 टन आया, टोटल कॉस्ट हो गया 15,000। इसमें फिर आप जोड़ोगे मटेरियल टू मटेरियल, मान लीजिए यहाँ 500 टन, 500 टन। इसका कॉस्ट आ गया 7,500। क्लियर। फिर टू लेबर मान लीजिए 3,000। टू ओवरहेड मान लीजिए 2,000। ये फिर हम जोड़ेंगे, ये जोड़ने से 1,500 टन। इसका कॉस्ट कितना होगा, आप जोड़ दो, 0 0 5 3 2 5 10 7 17 7 8 में 1 27,500। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी के जगह में हम लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। अब बी में से टोटल कहां जाएगा, सी। आप अगर देखेंगे तो प्रोसेस ए का कॉस्ट भी जोड़े, प्रोसेस बी का कॉस्ट भी जोड़े, टोटल कॉस्ट निकाले, दैट विल बी ट्रांसफर टू द प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में कितना आएगा, 1500 टन। ये बैलेंस जो है कितना, 27,500। ये अगर आप टोटल करते हो तो 1500 टन, इसका कॉस्ट कितना होगा, 27,500। क्लियर। अब देखो ये ए का ऐड हो गया, बी का ऐड हो गया, टोटल ऐड होके कहां जा रहा है, प्रोसेस सी में। क्लियर। अच्छा, इसका फिर हम प्रोसेस सी अकाउंट बनाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं।
देखिए इसको हम अभी लिखेंगे प्रोसेस सी। प्रोसेस सी, प्रोसेस सी में कहाँ आएगा? ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। प्रोसेस सी में सबसे पहले कहाँ से आया? प्रोसेस बी। कितना टन? 1500 टन। कितना रुपया? 27,500। अब देखो प्रोसेस सी का भी मटेरियल है, मान लो 750 टन। क्लियर? 10,000 रुपया। अब लेबर 3,000, ओवरहेड मान लीजिए 2,000। देन अगर हम टोटल करते हैं, देन यू विल गेट द, यहां और ट्रांसफर कहीं पे भी नहीं होगा क्योंकि हम फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां आप जोड़ दीजिए 0 0, आपका हो गया 5, 7 3 10 2 12 में 1 3 1 4, 42,500। ये होगा 2250 टन। कॉस्ट कितना होगा? सो ये फिनिश्ड गुड्स, ये होगा 2250 टन। इसका कॉस्ट है 42,500। यहाँ भी जोड़ दीजिए आप 22,250 टन्स, 42,500। क्लियर? देन यू विल गेट फिनिश गुड्स। अगर आपको बोलता है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट कितना है? 42,500 डिवाइडेड बाय 2250। कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। देखिए ये जो था ये सिंपल प्रोसेस कॉस्ट। हाउ टू डिटरमिन द प्रोसेस कॉस्ट इन सिंपल वे विदाउट योर नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। बट normal loss and abnormal loss, that is occurs. First we will discuss treatment of normal loss. Treatment of normal loss. अगर आपको क्वेश्चंस में नॉर्मल लॉस है बोल के बोलेगा तो आप कैसे उसको ट्रीटमेंट करेंगे? क्लियर? एक चीज ध्यान देना, नॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ इनपुट इन टर्म्स, इन यूनिट। यूनिट में भी टन्स में भी लीटर जो भी है। तो नॉर्मल लॉस किसके ऊपर में कैलकुलेशन होता है? इनपुट इन यूनिट। जितना अमाउंट के ऊपर में नहीं होता है, इनपुट के ऊपर में होता है हर टाइम। ये चीज आप लोग याद रखना है। नॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ इनपुट। इनपुट के ऊपर में ही नॉर्मल लॉस हर टाइम कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस क्या? एबनॉर्मल लॉस कैसे पता चलेगा आपको? आपको नॉर्मल लॉस तो क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया रहता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस आपको ही निकालना पड़ेगा। मैं क्या बोला आप लोग को समझ में आया? दोबारा फिर रिपीट करता हूं मैं। नॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ इनपुट इन यूनिट। ये यूनिट के ऊपर में नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन होगा। ये क्वेश्चंस में दिया रहता है 2% नॉर्मल लॉस है कि 3%। ये नॉर्मल लॉस जो है उनका पास्ट एक्सपीरियंस से उनको मालूम होता है कि कितना नॉर्मल लॉस होगा। उस हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहता है 2%, 5%,
3% जितना भी नॉर्मल लॉस बोलेगा आप निकालेंगे इनपुट के ऊपर में सॉरी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, आप ही लोग को देख करके निकालना पड़ेगा। कैसे, इसका क्या सिम्टम है, जिस चीज को देखते हुए आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा, इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो इनपुट इज मोर देन आउटपुट। मैं क्या बोला समझ में आया? अगर ये एबनॉर्मल लॉस होगा, इनपुट इज मोर देन द आउटपुट। मान लीजिए इनपुट 1000 टन है और आउटपुट आपका 800 टन है मान लीजिए, तो ये 200 टन जो बैलेंस है दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस, दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। ये पहला सिम्टम है। और एक बात और है, सिंपल प्रोसेस में, इन केस ऑफ सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग, आउटपुट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आउटपुट आप ही लोग को निकालना पड़ता है। जैसा मैं सिंपल अभी प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी बताया, उसमें आप देखेंगे आउटपुट हम ही लोग निकालते थे ना। नहीं, क्वेश्चन में आउटपुट दिया नहीं रहता है। इन सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग आउटपुट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हम ही लोग को ही आउटपुट निकालना पड़ता है। लेकिन कोई भी क्वेश्चंस में आउटपुट दिया है, इसका मतलब आइदर यू विल गेट एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। बात समझ में आया? जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे और पता चला कि आपको आउटपुट क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब आपका दिमाग में हर टाइम रहना चाहिए एबनॉर्मल लॉस या गेन निकलेगा। इसका सिम्टम यही है। लेकिन सिंपल प्रोसेस में आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड गेन, मैं लिख दूंगा बाद में, अगर ये एबनॉर्मल गेन होगा, अगर ये एबनॉर्मल गेन होगा तो इनपुट इज लेस देन आउटपुट। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए 1000 है, 1000 टन है, तो ये 1200 टन है। दैट मीन्स इनपुट इज लेस देन द आउटपुट। इसमें 200 टन गेन है, यहां लॉस था, यहां गेन है। जब इनपुट इज मोर देन आउटपुट, द डिफरेंस इज योर लॉस। इफ इनपुट इज लेस देन द आउटपुट, द डिफरेंस इज गेन। डिफरेंस इज गेन। क्लियर माय पॉइंट? यहां से आपको पता चलेगा एबनॉर्मल लॉस है या गेन है। मान लीजिए प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पहले से आउटपुट दिया होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस या गेन निकलेगा। मैं लिख देता हूं, आप थोड़ा इस चीज को ध्यान देना। मैं लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा इसको ध्यान दो। इन केस ऑफ एबनॉर्मल gain or abnormal loss, output must be given in the questions. Clear my point? In case of abnormal loss or gain, आउटपुट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस में आउटपुट दिया है, इसका मतलब आंख बंद करके एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस निकलेगा ही निकलेगा। डियर स्टूडेंट, आप इस चैप्टर का थ्योरी को क्लियरली पढ़ लीजिएगा एक बार।
पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिकल चालू करना। मैं प्रैक्टिकल से ही चालू किया हूँ, थ्योरी किताब में बढ़िया से लिखा है, आप थोड़ा इसको पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा फिर समझाने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।